Chapter number 14, Bhaswa's Farm. In this chapter, we are going to learn about the farming, that how the farmer used to work in their farms and what types of crops they do used to grow, right? So the first picture you can see that this is the land of the farmer. He is himself a farmer and he is digging the soil, right? So the first line we will see, I request all the students that please, where I am reading, please put your finger there so you can also read it very nicely with me. I am Bhaswa. What the name of the child is? The name of the child is the Bhaswa. Underline Bhaswa. He is a small child. Just 1 minute. Okay. Bhaswa is a child like you. Bhaswa एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल आपकी एज का बच्चा है. Okay. My father is a farmer. What Bhaswa is telling? What the Bhaswa is telling, that his father is a farmer, underline farmer. We live in Belwanika. Where the Bhaswa and his family live? Belwanika. Where they live? They live in Belwanika. Village in Karnataka. This village is in Karnataka. In which state this village is? The village is in Karnataka. Again, I am explaining you. Bhaswa is a small child like in your age. आपकी उम्र का ये बच्चा है. What he is telling? He is telling that his father is a farmer. They live in Belwanika village. Belwanika village is in Karnataka. Where it is? It is in Karnataka. It is the month of July. What Bhaswa is telling? Which month is going on? July is going on. Like every year, Appa means my father. Har saal my father, means he is telling that every year my father is preparing the field to snow the onion crops. अब भासवा के जो फादर है वो अपनी फील्ड में कौन से क्रॉप्स लगाने वाले हैं, कौन से वेजिटेबल्स के क्रॉप्स लगाने वाले हैं? अंडरलाइन करो, ओनियन क्रॉप्स. सो भासवा इज टेलिंग दैट एवरी ईयर, हर साल कौन से मंथ में? इन द मंथ ऑफ जुलाई. भासवा की जो फादर है वो प्रिपेरिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अपनी फील्ड की. क्या स्नो करने के लिए, क्या डालने के लिए? कौन सा वेजिटेबल्स क्रॉप? ओनियन वेजिटेबल्स क्रॉप. देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डू एट दैट टाइम. व्हाट भासवा इज टेलिंग कि उस टाइम पे इन द मंथ ऑफ जुलाई मेरे पापा के पास बहुत सारा काम होता है फील्ड में करने के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड? फील्ड मीन्स खेतर में. देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू. टू हेल्प हिम I too go to the field with Appa. What Bhaswa is telling कि my father is having lot of work to do in the field. बहुत सारा काम होता है, सॉइल को डिगिंग करना, ओनियन की शीट्स को डालना, बहुत सारा काम होता है. इसलिए मैं अपने फादर को हेल्प करने के लिए उनके साथ कहाँ जाता हूँ? He used to go in the field. In the last few days, कुछ दिनों पहले की बात बोल रहा हूँ. Appa has been using the kunti. What is kunti? An iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. So what do you mean by kunti? What Bhaswa is telling कि उसके जो फादर हैं वो अभी फील्ड में क्या काम कर रहे हैं? कुंती से. What do you mean by kunti? An iron rod. This is known as kunti. आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा लकड़े का होता है ये स्टिक, इसके ऊपर ये जो है ना वो लोखंड का होता है. आयरन मीन्स लोखंड. इसको फार्मिंग लैंग्वेज में कुंती बोला जाता है. कुंती, KHUNTI, कुंती. ओके. इससे क्या होता है? द फादर, भासवा's फादर यूज्ड टू डिग द सॉइल. दिस इज सॉइल. ये सॉइल है तो उसके फादर ये सॉइल को डीग करना. डीग का मतलब उसको खुदाई कर रहे हैं. क्यों खुदाई कर रहे हैं फील्ड की? क्योंकि अगर उसके फादर ये फील्ड की खुदाई करेंगे तो जो मिट्टी है, जो मड है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और पूरी तरह से ओपन हो जाएगी.
फिर उसके अंदर वो अच्छे से ओनियन के जो शीड है वो अच्छे से वहां पर डाल सकते हैं। कौन? भास्वा's फादर। कौन? भास्वा's फादर। Okay, I'm explaining you this paragraph again. We will be going very slowly. We are not going to run so fast. See, he is the father of Baswa. Okay, he is a farmer. ये एक फार्मर है और फील्ड में काम कर रहे हैं। फील्ड यानी खेतों में काम कर रहे हैं, राइट? वो कौन से विलेज में रहते हैं? बेलवानी का। एवरीवन से लाउडली, विच विलेज यूज्ड टू बासवा यूज्ड टू लिव? बेलवानी का। बेलवानी का जो विलेज है वो कौन से स्टेट में है? इट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट? इन द मंथ ऑफ जुलाई, एवरी ईयर, हर साल जब भी जुलाई का मंथ होता है उस मंथ में बासवा के फादर को बहुत सारा काम होता है। फील्ड के अंदर, खेत के अंदर बहुत काम होता है। क्या काम होता है? क्योंकि उस टाइम पर इन द मंथ ऑफ जुलाई उनको ओनियन क्रॉप्स डालना होता है। कौन से क्रॉप्स को डालते हैं वो फील्ड में? ओनियन क्रॉप्स। अब ओनियन क्रॉप्स को डालने के लिए सबसे पहले जो फील्ड है, जो खेत है, उसको पूरी तरह से डीग करना पड़ता है। डीग यानी खुदाई करनी पड़ती है पूरे खेत की, क्योंकि जो मिट्टी है वो एकदम कड़क हो जाती है। तो जो सॉइल है उसको उनको सॉफ्ट करना पड़ता है। और वो सॉइल को सॉफ्ट कैसे करेंगे? जब वो कुंती की मदद से, मतलब इसको कुंती बोला जाता है, इसकी मदद से जब पापा पूरी फील्ड को खुदाई कर लेंगे, पूरी सॉइल को डीग कर लेंगे, आराम से उसको खोद लेंगे, खुदाई कंप्लीट कर लेंगे, तो जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, यानी एकदम मुलायम हो जाएंगी और वो सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी कि फिर उसके अंदर पापा आसानी से कौन सा शीट डाल सकते हैं? ओनियन शीट। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? नाउ सी, बासवा जिस एरिया में रहता था, जिस जगह पर रहता था, बेलविका विलेज में जहाँ रहता था, वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको क्या बोला जाता था? कुंटी बोला जाता था। ये औजार को हर जगह पर अलग अलग नामों से बोला जाता है। इधर कुल्हाड़ी बोला जाता है, गुजरात में इसको कुल्हाड़ी बोला जाता है। उसके फादर जहाँ पर कर्नाटका में जिस गांव में रहते थे वहाँ पर इनको सब कुंटी बोलते थे, यानी इसका नाम हर जगह पर अलग अलग होता है। ऐसा कौन बोलता है? बासवा। इट यूज टू लूज द सॉइल। ये जो आप देख सकते हो कुंती, वो किसके मदद करने में आती हैं? सॉइल को खोदने के मदद में आती है, खुदाई के मदद में आती है, इसकी वजह से जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और एकदम लूज हो जाती है। What is this kind of implement called in your area? Draw it and discuss it. अब आपको ये पता लगाना है कि हमारे यहाँ पर जो सॉइल को डिग करते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, उसको कुल्हाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इधर? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी की मदद से यहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं वो सॉइल को क्या करते हैं? डिग करते हैं, यानी उसकी खुदाई करते हैं, उसको लूजर और सॉफ्ट बनाने के लिए। Showing the sheets. Now what do you mean by showing the sheets? How we are going to grow the sheets? This year also my father will snow onion shed. Underline, इस बार भी उसके पापा फील्ड के अंदर कौन से शीट्स डालने वाले हैं? ओनियन के। इन द फील्ड द बुलक विल पुल द कुर्गी, KURIGE kurgi, and Appa will walk behind them. Now see, what do you mean by kurgi? Now this is the bullock. Can you see this too? इसको क्या बोलते हैं? उसको बुलक बोला जाता है। बुलक के पीछे पापा ने कुर्गी को टाई अप किया है। आपको ये वाला दिख रहा है? कैन यू सी दिस वन? दिस इज नोन एज अ कुर्गी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एवरीवन लुक इन योर टेक्स्ट बुक। दिस इज नोन एज कुर्गी। पापा ने बुलक के पीछे किसको टाई अप किया है? कुर्गी को टाई अप किया है। एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड इट, और बिहाइंड का मतलब कुर्गी के पीछे कौन चलेगा? पापा। नाउ सी इट केयरफुली। दिस इज द बुलक। एक लॉन्ग स्टिक की हेल्प से पापा ने कुर्गी को बुलक के पीछे टाई अप किया है।
जो कहाँ पर है, यहाँ सॉइल के अंदर है। कहाँ पर है, यहाँ सॉइल के अंदर इसको डीग किया गया है। कैन यू सी दिस अनदर पाइप? दिस इज अ वन पाइप। ये एक पाइप है जिसकी हेल्प से पापा यहाँ पर ही, इसको शीट बोलते हैं। दिस वन इज नोन एज द शीट। कि पापा एक हाथ से कुर्गी को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से ये पाइप के अंदर शीट्स को डालेंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे बुलक आगे वॉक करती जाएगी, बुलक आगे चलती जाएगी, ये कुर्गी सॉइल को क्या करेगी, डीग करते जाएगी, यानी इसकी खुदाई करते जाएंगे। और वैसे जैसे जैसे आगे ये खुदाई होता जाएगा, पापा ये जो शीट्स डाल रहे हैं वो पाइप की हेल्प से डायरेक्टली जो सॉइल डिग की है, जो सॉइल को खोदा गया है, उसके अंदर ये शीट्स को अच्छे से डाले जाएंगे। और पापा जो सॉइल को डिग किया है यहाँ पर, वहाँ पर पैर नहीं रखेंगे, दोनों साइड पे अपने पैर को रख के इसको बीच में वो चलेंगे। यानी ये कुड़के की मदद से जो सॉइल डिग होती है वो यहाँ पर बीच में होगी। पापा अपने दोनों पैर साइड में रखेंगे, जिससे जो शीट्स पापा सॉइल के अंदर डालने वाले हैं वो डैमेज ना हो। तो इसको क्या बोला जाता है, कुर्गी। कुर्गी किसके लिए यूज होती है, सॉइल को डीग करने के लिए कुर्गी यूज्ड होती है। नाउ सी द नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग द शीट्स। स्प्रिंकलिंग द शीट्स मतलब शीट्स को फील्ड के अंदर स्प्रेड करना, उसको डालना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। भास्वा क्या बोलता है कि पापा की तरह ही मुझे भी ये काम करना है। बट पापा सेड दैट इट इज नेसेसरी, अंडरलाइन करो, नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ शीट एट अ रेगुलर डिस्टेंस। पापा ने क्या बोला कि ये बेटा ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि आप जो भी शीट्स यहाँ सॉइल के अंदर, फील्ड के अंदर डालते हो वो एकदम राइट अमाउंट के हो, यानी एक बिल्कुल बराबर, ना एक कम ना एक ज़्यादा आपको ये शीट्स को यहाँ फील्ड में डालना पड़ता है। और बिल्कुल रेगुलर डिस्टेंस पर, और आप जो शीट्स को डालते हो उसका डिस्टेंस भी परफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पापा ने एक शीट यहाँ डाला तो दूसरा यहाँ डालेंगे, तो थर्ड वाला भी यहाँ डालेंगे। मतलब यू कैन सी द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस देख सकते हो। शीट डालने का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल बराबर होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, इट शुड बी परफेक्ट। क्या परफेक्ट होना चाहिए, डिस्टेंस। अगर पापा ने यहाँ पर 2 शीट्स डाले हैं तो इधर भी पापा 2 शीट्स डालेंगे, इधर भी 2 शीट्स डालेंगे और इधर भी 2 शीट्स डालेंगे। यानी अमाउंट भी परफेक्ट होना चाहिए और डिस्टेंस भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर अमाउंट शीट्स का परफेक्ट नहीं हुआ, अगर शीट्स का अमाउंट परफेक्ट नहीं हुआ और डिस्टेंस भी परफेक्ट नहीं हुआ तो ओनियन के जो क्रॉप्स है वो अच्छे से क्या नहीं होंगे, वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। गॉट इट? आई बात समझ में बेटा? इसलिए पापा ने भास्वा को क्या बोला कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको आइडिया नहीं है कि कितने शीट्स को कहाँ पर डालना है और कितने डिस्टेंस में डालना है। नाउ सी द नेक्स्ट, what other way could be used to poke the field instead of animal discuss? अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास से एनिमल है बुलक, जिसकी हेल्प से हम फील्ड को डिग करते हैं, यानी शीट्स को अच्छे से उसको अंदर डालते हैं। अगर हमारे पास एनिमल नहीं है तो दूसरा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है कि उसकी मदद से हम ये कर सकते हैं, यानी सॉइल को कर सकते। तो द सेकेंड ऑप्शन इज द ट्रैक्टर। विच इज द सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट? ट्रैक्टर। विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर ऑल्सो we can dig the soil in the field and we can sprinkle the seeds in the field. Now the sprouts, sprouts appear. Now what do you mean by sprouts appear?
आपने यहाँ पर देखा कि फादर इज पुटिंग द सीड इन द सॉइल, पापा सॉइल के अंदर सीड्स को डालते हैं। तब यहाँ पर देखो फील्ड में कोई भी कुछ भी नहीं ग्रो हुआ था। आफ्टर द 20 डेज, पापा ने सीड्स को डालने के बाद 20 डेज के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 20 डेज, कितने डेज के बाद फील्ड में ये जो ओनियन का प्लांट है वो ग्रो हुआ? 20 डेज के बाद। ये आप ये फील्ड देख सकते हो, ये फील्ड में क्या ग्रो हो गया? ओनियंस प्लांट। कैन यू सी दिस लॉन्ग प्लांट? सी, आप ये जो लॉन्ग प्लांट्स ऐसे देख रहे हो, कैन यू सी दिस लॉन्ग प्लांट्स? येस और नो? सी, ये लॉन्ग प्लांट्स जिसको मैंने ब्लैक कलर से अभी ये मैं ऐसा कर रही हूँ, वो किसके प्लांट है? दिस इज द प्लांट ऑफ ओनियन। आप हर एक फील्ड में ये देख सकते हो, ये जो लॉन्ग ग्रो हुआ है वो क्या है? दैट इज द प्लांट्स ऑफ ओनियन। यानी 20 डेज के बाद, सीड्स डालने के बाद 20 डेज के बाद उसमें से क्या बाहर निकला? यानी सीड्स तो हमने ज़मीन के अंदर डाले, आफ्टर 20 डेज के बाद वो ज़मीन के ऊपर क्या ग्रो हो गया? ओनियन प्लांट्स। क्या ग्रो हो गया? ओनियन प्लांट्स आफ्टर 20 डेज। बट एक और प्रॉब्लम हो गई, ओनियन प्लांट्स तो ग्रो हुए बट उसके साथ ये ग्रीन कलर की जो ग्रास आपको दिख रही है, ये वाली जो ग्रास, इसको बोला जाता है वीड्स। WEEDS, वीड्स। इसको क्या बोला जाता है? वीड्स। क्या बोला जाता है? वीड्स, मतलब एक्स्ट्रा ग्रास। आपको पता है बारिश की सीजन में हमारे घर के आजू बाजू बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ग्रास ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती अपने आप, जिसको हम ग्रो नहीं करते हैं। तो वैसे ही भासवा के फार्म में भी क्या हुआ, जैसे पापा ने ओनियन के क्रॉप्स डाले और वाटर डालना स्टार्ट किया, पानी डालना स्टार्ट किया, तो वहाँ क्या हो गए? ओनियन क्रॉप्स के साथ साथ क्या ग्रो हो गए? वीड्स। वीड्स मतलब एक्स्ट्रा ग्रास भी ग्रो होना शुरू हो गया, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द ओनियन क्रॉप्स। और वो ओनियन क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। विदाउट बीइंग प्लांटेड, वो अपने आप ग्रो हो जाता है, इसको कोई प्लांट नहीं ग्रो करता है। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव, हमें इसको रिमूव मतलब इसको निकाल देना चाहिए, the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस वीड्स को है कि अगर हम इस ग्रास को, इस वीड्स को यहाँ से नहीं निकालेंगे तो ये जो ओनियन के आपको जो ये क्रॉप्स प्लांट्स दिख रहे हैं, यू कैन सी दिस ओनियन प्लांट, उसका क्या होगा कि उसको हम जो वाटर देंगे वो सारा वाटर ये वीड्स ले लेंगी, ये जो एक्स्ट्रा ग्रास है वो सारा पानी पी जाएगी ओनियन का, और ओनियन के जो प्लांट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो छोटे के छोटे रह जाएंगे। ओनियन जो साइज में और जो हेल्थ में ग्रो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रास है वो डेंजर है किसके लिए? ओनियन प्लांट्स के लिए। तो पापा ने, मम्मी ने, भासवा ने और मामा ने, सब ने मिलकर क्या किया? अंकल ने मिलकर क्या किया? ये एक्स्ट्रा ग्रास को यहाँ से निकाल दिया। क्या किया? पूरे फील्ड में जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रास थी तो किसने किसने मिलकर किया? भासवा ने किया, उसकी मम्मी ने, पापा ने और भासवा के एक अंकल थे, ये चारों ने मिलकर ये जितनी भी ग्रास है उसको रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया मतलब निकाल दिया। आई बात समझ में? इज दैट गॉट क्लियर? तो स्टूडेंट, किस किसने ग्रास को मिलकर निकाला? अप्पा, भासवा, आई मतलब भासवा, अम्मा एंड अंकल। मीन्स द एक्स्ट्रा ग्रास जो ग्रो हो रही थी दैट वॉज नॉट गुड फॉर द ओनियन क्रॉप्स। नाउ सी द नेक्स्ट, ग्रोइंग प्लांट।
मतलब अब भास्वा कैन सी द प्लांट्स ग्रोइंग, अब भास्वा देख सकता है कि जो प्लांट्स है वो क्या हो गए थे, फील्ड में बहुत अच्छे से ग्रो हो गए थे, यानी वो ऑलरेडी बड़े हो चुके थे। सी, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। What Bhaswa is telling that I am very happy to see that the plants in the field has been grown. भास्वा ऐसा बोल रहा था कि मैं बहुत खुश था क्योंकि जो मेरे ओनियन के जो प्लांट्स थे वो बहुत अच्छे से क्या हो चुके थे, ग्रो हो चुके थे, यानी वो एकदम बड़े हो चुके थे। यू कैन सी they are tall enough to reach my knees. What भास्वा is telling कि वो इतने बड़े हो चुके थे कि यहाँ जो मेरी नीज है यानी मेरे जो घुटने हैं वहाँ तक मेरे प्लांट्स बड़े हो चुके थे। The leaves, underline leaves, the leaves has started turning yellow. Underline yellow. भास्वा क्या बोल रहा है, उसकी जो लीव्स है वो कौन से कलर की होने लगी, येलो। नाउ व्हाट इज द लीव, दिस इज नोन एज लीव्स। ये जो मैं आपको ये डार्क कलर करके जो बता रही हूँ ना उसको लीव्स बोला जाता है। ये ओनियन के क्या हैं, लीव्स हैं। अब वो कैसा होना शुरू हो गए थे, वो येलो कलर में, कैसा होना शुरू हो गए थे, वो येलो कलर में होना शुरू हो चुके थे। कौन से कलर में, येलो कलर। एंड ड्राई अप, ये जो ओनियन की जो शीट्स है वो येलो कलर की हो गई थी। सारी लीव्स कौन से कलर की हो गई थी, एवरीवन टेल लाउडली। ये सारी लीव्स येलो कलर की हो चुकी थी और ड्राई हो चुकी थी। ड्राई मतलब सूख गई थी, जिसको वो इजीली खींचकर निकाल सकते हैं। कहाँ से, फील्ड में से, जमीन में से। It means that the onions are ready to be taken out. मतलब भास्वा ने क्या बोला कि मेरे ओनियन का जो फील्ड है जहाँ पर मैंने ओनियंस के लीव्स को ग्रो किया था, अब वो लीव्स बहुत बड़ी हो चुकी है जो मेरे नीज तक आती हैं। उन लीव्स की जो लीव्स है, ओनियन प्लांट्स की जो लीव्स है उसकी जो पत्तियां हैं वो येलो कलर की हो चुकी है और वो ड्राई भी हो चुकी है, यानी सूख गई है। मतलब मेरी जो ओनियन है वो रेडी हो चुकी है, अब इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ऐसा किसने बोला, हु टोल्ड दिस, भास्वा टोल्ड। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड। एवरीवन at home will have to work to take the onion out. Now what Bhaswa is telling that the onion plant has been grown up, वो बड़े हो चुके हैं, अब वो ऑलरेडी रेडी है, तो हम उसको क्या करेंगे, फील्ड में से बाहर निकालने वाले हैं। फील्ड में से बाहर निकालने के लिए, ज़मीन में से उसको निकालने के लिए ओनियन प्लांट को हमें क्या करना पड़ेगा, वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। हम सबको यानी मम्मी को, पापा को, मुझे, अंकल को, यानी हम सबको मिलकर ओनियन प्लांट्स को फील्ड में से निकालना होगा। It's important that it should be done at the right time. What Bhaswa is telling कि ओनियन क्रॉप्स रेडी हो चुके हैं, उसकी जो लीव्स है वो येलो कलर की हो चुकी है, राइट। अब उसको क्या करना है, अब येलो कलर की लीव्स हो गई है, पूरी ड्राई हो चुकी है, इसलिए ये बिल्कुल राइट टाइम है ओनियन को फील्ड में से निकालने के लिए। इफ वी आर लेट, अगर हम थोड़े दिन भी लेट हो जाएंगे, what will happen, the onion will rot into the ground itself and all our hard work will be wasted. मतलब भास्वा ऐसा बोल रहा है कि जो ओनियंस है वो क्या हो जाएगी, ग्राउंड के अंदर बिगड़ जाएंगी, रॉड हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, अगर हम उसको टाइम पर बाहर नहीं निकालेंगे, और इतने महीनों की हमारी जितना भी हार्ड वर्क है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ओनियन प्लांट्स को टाइम पर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ सी द
Next, Baswa helped his father in the field. Do you help the elders in your family? Is there work? What do you help with? मतलब ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भास्वा जो है वो अपने पापा को कहाँ हेल्प करता है. ही हेल्प इन द फील्ड. फील्ड मतलब खेतों में वो उसकी मदद करता है. डू यू हेल्प योर एल्डर्स? क्या आप अपने घर के किसी भी बड़े मेंबर्स को हेल्प करते हो? यस और नो. अगर हेल्प करते हो तो वो कौन सी चीज में है जिनको आप हेल्प करते हो. नाउ सी दिस पिक्चर. What all the members are doing? They are taking the onion from the soil. वो लोग क्या कर रहे हैं? ओनियन लीव्स को खींचते हैं. They used to pull the leaves, and after pulling the leaves they used to take out the onion from that leaf. Now we will go to the page number 116. Ab this is the last. Just 1 minute. Take out the page number 116. पेज नंबर 116 में वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ. द ओनियन क्रॉप्स. एवरीवन एट होम इज हैप्पी. घर पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी है. व्हाई? दिस टाइम द ओनियंस आर बिग एंड हेल्दी. इस बार जो ओनियंस ग्रो हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बिग है और हेल्दी है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो हुई है. अम्मा एंड आंटी. दिस इज द अम्मा एंड शी इज हर आंटी हु इज बासवा. यूज द इल्गी. अंडरलाइन करो इल्गी. ILLIGE इल्गी. What do you mean by इल्गी? This is known as इल्गी. इसको इल्गी बोला जाता है. मतलब ये एक तरह का नाइफ होता है, एक तरफ का चाकू होता है जिसके हेल्प से ओनियन हम क्लीन कर सकते हैं. मतलब ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओनियन. ये एक ऐसी ओनियन है. अब इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी लीव्स होती है. क्या होती हैं? ऐसी बड़ी बड़ी लीव्स होती है. अब इस लीव्स को कट करने के लिए, यहाँ से उसको कट करने के लिए इस इल्गी का यूज होता है. मतलब यहाँ पर ओनियन को रखा जाता है और इसकी जो लीव्स होती है उसको कट किया जाता है. तो ये जो मशीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एलिमेंट है, वो किसके लिए यूज होता है? ओनियन ट्री के, ओनियन प्लांट के ऊपर जो ड्राई लीव्स होती है उसको कट करने के लिए ये लोग किसका यूज करते हैं? इल्गी. यू कैन सी दिस. आप यहाँ पर देख सकते हो कि मम्मी यहाँ ओनियन रखी है और ड्राई लीव्स को निकाल कर अलग रखी है. ये ओनियन है और ओनियन के यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्टैम्प होता है, एकदम मोटा सा एक क्या होता है? ड्राई लीव होता है जो हाथ से नहीं टूटता है. तो इल्गी की मदद से उसको निकाला जाता है. द इल्गी इज अ शार्प and you have to take care of not to cut your finger. और ये इतना शार्प होता है, इतना पॉइंटेड होता है, इतना तेज होता है कि आपको ये काम बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, वरना आप इसके अंदर आपकी फिंगर्स को भी कट कर सकते हो गलती से. Appa and uncle fill the sack with the onion. Appa will take them in the truck to sell in the big market. अप्पा और अंकल, मम्मी और आंटी इसको क्लीन कर रहे हैं. ओनियन में से जो लीव्स है, ड्राई लीव्स है, उसको निकाल कर एक तरफ साफ वाली ओनियन रख रहे हैं. फिर पापा यानी अप्पा और अंकल मिलकर जो सैक्स है, मतलब स्रैक्स है, जो उसको बैग बोलते हैं, गनी बैग, उस गनी बैग्स में बहुत सारी ओनियंस को फिल्ड किया है, मतलब भरा है ओनियंस को. और ओनियन भरने के बाद यहाँ पर उनको यहाँ पर स्टिच किया दिया जाता है, यानी उनको यहाँ पर सिया जाता है. आफ्टर दैट व्हाट अप्पा एंड अंकल विल डू? दे विल कॉल द ट्रक. वो एक ट्रक मंगवाएंगे, उस ट्रक के अंदर ये सारी ओनियंस को रख देंगे और उसके बाद
एक बड़े से मार्केट में जाकर उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, यानी बेच देंगे, क्योंकि इस बार उनका जो क्रॉप ग्रो हुआ है, जो ओनियन क्रॉप ग्रो हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो हुआ है। ऐसा कौन बोल रहा है, बासवा। So student, here we have completed our explanation of this chapter number 14. यहाँ पर हमने ये चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। Now this is the some textbook exercise. ये कुछ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है जो मैं आपको PDF के साथ इसको फॉरवर्ड करूँगी, जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना रहेगा। Is that clear? So here we are ending our explanation of this chapter. I hope you all have understand this chapter very nicely. I will be sending you the textual exercise PDF in your WhatsApp group. और turn the page. Page number 118 को निकालो everyone. Now these are the few exercise. Many steps are needed to grow the crops. Look at the picture and make them in the correct order. अब हमें इनको, ये पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर में हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले क्या काम होता है, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू? हु विल टेल मी? कौन बोलेगा फर्स्ट थिंग? इसको सबसे पहले हम जो सॉइल है उसको डिग करेंगे। सो दिस इज द नंबर 1, है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ विच इज द सेकेंड स्टेप? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसके अंदर पापा देखो क्या कर रहे हैं, ये डॉट्स आपको दिख रहे, कैन यू सी दिस डॉग? पापा इसके ऊपर शीट्स को स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। दिस इज द सेकेंड स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप है। नाउ विच इज द थर्ड स्टेप? एनीवन कैन टेल मी कि थर्ड स्टेप कौन सा है? कौन मुझे बताएगा? हु विल टेल मी? कम ऑन, टेल मी फास्ट। यस, दिस इज नोन एज द थर्ड स्टेप। व्हाई? बिकॉज पापा क्या निकाल रहे हैं? एक्स्ट्रा ग्रास। जो एक्स्ट्रा ग्रास ग्रो हुई थी, जिसकी मदद से, उसके वजह से हमारे ओनियन क्रॉप्स को वाटर नहीं मिला था। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। आफ्टर दैट, उसके बाद दिस इज द फोर्थ स्टेप। ये फोर्थ वाला स्टेप है। क्यों फोर्थ वाला स्टेप? क्योंकि अब ओनियंस के जो प्लांट्स है वो ग्रो हो चुके हैं एंड यू कैन सी मम्मी उसको कट कर रही है यहाँ नीचे से, यानी मम्मी ओनियन प्लांट्स को वहाँ से निकाल रही है। देन दिस इज द फिफ्थ स्टेप, राइट? दिस इज द फिफ्थ स्टेप कि यहाँ पर लीव्स को कट किया जाता है, फिर ओनियन को पूरा बाहर से क्या किया? निकाला गया। यहाँ पर मम्मी लीव्स को कट कर रही है। कौन सी? येलो लीव्स। इसको खींच रही है, पुल कर रही है। अब ओनियन को जमीन में से निकालने से पहले पुल तो करना पड़ेगा ना, बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तो मम्मी यहाँ ओनियन को बाहर निकाल रही है। फिफ्थ स्टेप में ओनियन बाहर निकल चुकी है और सिक्स स्टेप्स में क्या हुआ कि पापा उसको एक बैग में फिल कर रहे हैं। फादर इज फिलिंग दिस बैग इन ओनियन इन वन बैग टू सेल इन द मार्केट। मार्केट में उसको बेचने के लिए ये कर रहे हैं। सो हियर with this exercise we have completed our chapter number 14. I hope you all have understand this chapter very nicely.